Hello friends, this is Suraj Kashyap, your friend come teacher, and here on this channel we are going to discuss about the modern history, and we will cover it through topic by topic and chapter wise. So today we are going to cover the advent of Europeans, यूरोपियों का आगमन भारत में, and the decline of later Mughals का डिक्लाइन, लेटर मुगल्स का पतन। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कई सारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स में द डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स को पहले पढ़ाया जाता है, देन उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आता है। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवर्स दिस ऑर्डर बिकॉज द डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स, जो लेटर मुगल्स का पतन है वो स्टार्ट होता है 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद। एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो आगमन है वो चालू होता है हमारा 1498 की वास्को डिगामा की डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। जब वास्को डिगामा इंडिया की डिस्कवरी करते हैं 1498 में, तो हमारे लिए ये ठीक रहेगा कि पहले हम 1490 15 सेंचुरी की चीजें तो समझ लें। तो हमारे लिए ठीक रहेगा कि पहले हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पहले पढ़े, क्योंकि वो 1498 में स्टार्ट हो चुका था, और लेटर मुगल्स जो कि 707 में हुए थे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 200 ईयर्स का गैप है। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देन लेटर ऑन वी विल मूव ऑन टू डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स। सो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट। So guys, our first topic is advent of Europeans in India. Here are some points of this. यूरोपियों का भारत में आगमन marks the beginning start of India's modern history. हाँ, यूरोपियों का आगमन और एडवेंट ऑफ यूरोपियन हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके पार्ट को स्टार्ट करता है। वहां से हमारी बिगनिंग होती है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की। देन सेकेंडली, यूरोपियंस यूरोप से जो भारत जो ग्रुप्स पहुंचे थे वो केवल इकलौते ना पोर्टुगीज थे, ना डच थे, ना इंग्लिश थे, ना फ्रेंच थे। देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप्स हु who sail their boats towards India from Portuguese, like the Dutch, the Portuguese, Portuguese, the English, whom we known as mighty British, the French, the Danish from Denmark, and this quest of advent of Europeans to India begins with the discovery of India through maritime route by Vasco da Gama in 1498 through Cape of Good Hopes. So what is the Cape of Good Hopes? I hope some of you are aware of it and some of you are not. So I'm going to explain it for you. So we will understand where is Cape of Good through a handy map of South Africa and Asia. Here we go. This is your South Africa and part of Arabia
and this is our lovely India. And here we are, some Lisbon. From here, Lisbon, Portugal, Vasco da Gama's route sailed towards Cape of Good, which is in Cape of Good Hope, which is in South Africa. Then he came to India in Calicut, which is in Kerala. Okay, I hope you guys understand. Now let's remove it. And if you want to keep it, let just keep it the map for the better understanding. Okay, that's okay. That's fine. So move on to the next. Firstly, we will going to discuss the arrival of Portuguese in India. But before that, we are going to discuss the chronological order of events through which various groups of Europeans arrived in India. सबसे पहले हम पुर्तगालिस के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेट बाय डेट उन चीजों के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में जानेंगे, उन डेट्स के बारे में जिन डेट्स पे डिफरेंट ग्रुप जो थे, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स इंडिया आए। ठीक है, उसको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। Here we go. Starting from 1498, arrival of पोर्टुगीज, पुर्तगालियों का आगमन कैलिकट, इंडिया। देन 1602 arrival of Dutch from Netherlands to मसूलीपट्टनम। कहाँ पे है मसूलीपट्टनम? आई होप यू ऑल आर नो, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश। So next, the arrival of mighty Britishers in Surat in Gujarat. Okay, and next is 1616, arrival of Dennis from Denmark. Denmark in Tranquebar, Telangana. Okay, and the last and lately, whatever you want to say, 1664, arrival of French in Pondicherry. So guys, we are also going to name these places on the India map to better understand this. हम इन जगहों के नाम इंडियन मैप पे भी एक बार सही से कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। ओके, सो हम इंडिया का मैप बना लेते हैं। ओके, आई गेस दिस इज द मैप. It will be not accurate, but yeah, it is not accurate, but हाँ, मैं काम चल जाएगा, अपन को बस काम चलाना है, तो देखते हैं। हाँ, here Calicut, Kerala, 1498, then 1602, Andhra, 1602, Andhra Pradesh, Masulipattnam, then 1608, Surat,
Then 1616, Denis in Tranquebar. Then 1664, Pondicherry. Pondicherry. Okay, that's all. So now we are going to discuss the arrival of Portuguese in India. अब हम पुर्तगालियों का इंडिया में अराइवल पढ़ेंगे, ठीक है? So move on. So arrival of Portuguese in India. Okay. अराइवल पुर्तगालियों का इंडिया में अराइवल शुरू होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया by Vasco da Gama, okay, which we have discussed earlier in this session. Discovery of India by Vasco da Gama in 1498. Okay. First factory, first trading, European factory स्टेबलाइज जो करी जाती है वो होती है आपकी कोचिन, गोवा में. देन लेटर ऑन दमन एंड ड्यू, देन इन सैलसेते एंड बसेन एंड बॉम्बे. ओके, गॉट इट. ये उनकी फैक्ट्रियां थी, बट द फर्स्ट वन वाज इन कोचिन गोवा. ओके. जो फर्स्ट पोर्टुगीज जनरल टू इंडिया थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. ओके. from who arrived in India in 505 AD, arrived and take charge between 509 to 1515. Okay, that's all. After Francisco de Alma, the next general of Portuguese was Alfonso Abraguer. सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत बोल रहा हूं इनका नाम तो. ठीक है. अब ये जो बंदा है इसको मेनली रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्तुगीज पावर का इंडिया में. इस बंदे ने पोर्तुगीज के लिए पूरा जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था उसको बदल के रख दिया था. इस अल्फेंसो ने, इस बंदे ने अपने रेंज में बीजापुर लिया, बीजापुर के सुल्तान से गोवा लिया, एंड देन लेटर उसे अपनी कैपिटल बनाया. ठीक है. ओके. टेकन गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर in 1510. Later capital of Portuguese Empire. Okay. Then अल्फेंसो के फ्रेंडली रिलेशन से विजयनगर एम्पायर के रूलर कृष्णदेव राव के साथ, जिन्होंने कृष्णदेव राव ने उसे परमिट भी दिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए भटकाल में. भटकाल इज अ प्लेस इन कर्नाटका. विजयनगर रूलर कृष्णदेव राव
कृष्णदेव राव या राय granted permission to build fort at Bhatkal, Karnataka. Okay, fine. Then we move on. During their time in India, during their time in India, जो पुर्तगाली थे इंडिया में अपने टाइम के दौरान उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता था इंडियन नेशन को अच्छे से मोनोपोलाइज किया था, उसको अपने अंडर कंट्रोल अच्छे से, कुछ उनकी सही पकड़ आ गई थी उस चीज पे। और उसके चलते उन्होंने अपना एक कार्टेज सिस्टम डेवलप किया था, जिसके अंडर वो जो नेवल ट्रेड होता था उसमें एक लाइसेंस और पास देते थे, जिसको कार्टेज सिस्टम कहा जाता था, अगर आपको इंडियन ओशन में ट्रेड करना है तो उसलिए। सो हियर वी डिस्कस दिस थिंग, डेवलप कार्टेज सिस्टम, a naval trade license or license or pass to trade in Indian Ocean by Portuguese, because of course, because they have monopoly over export, import of Indian Ocean. Sorry, not Indian Ocean, via Indian Ocean, जो भी इंडियन ओशन के द्वारा करेगा। Okay. Portuguese also have introduced some new kinds of plant, like introduce new plants like tobacco, cashew, kaju, tobacco, kaju, nuts, and variety of coconut. Okay, that's all. They have also developed Gothic architecture in India. Developed Gothic architecture in India. And what is this Gothic architecture? देखिए गोथिक आर्किटेक्चर जो होता था ना, वो 12वीं 12वीं शताब्दी से लेके 12वीं सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक में जो यूरोप था उसमें एक प्रेवलेंट था। जैसे कि हम यूरोप के जो गोथिक, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर था जिसमें आप बड़े बड़े बड़ी बड़ी स्टाइल की चर्चेस बिल्डिंग्स, जो कि आप मूवीज वगैरह में आपने देखी होंगी, वो आप देख सकते हैं। गोथिक आर्किटेक्चर का एक फेमस एग्जांपल है जोमो दी मिलानो। ये कैथेड्रल चर्च है जो कि इटली में है। ओके, this is all we have to know about the Gothic architecture. Okay, let's move on. So now we are going to discuss about the favorable condition for Portuguese due to which they survive in India. Okay, ऐसी क्या कंडीशंस थी इंडिया में जिनकी वजह से पोर्टुगीज यहाँ पे अपना वर्चस्व बना पाए और उसे स्थापित कर पाए। लेट्स सी इट। फेवरेबल कंडीशन for Portuguese. Okay. Okay. Now, first of all, they have monopolistic approach. Okay. First.
सो मोनोपोलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? मोनोपोलिस्टिक अप्रोच में पहले हम इंडस्ट्रीज पे कब्जा लेते हैं, अपनी इंडस्ट्री किसी नेशन में डालते हैं, वहां पे उन्हें स्थापित करते हैं, देन उन इंडस्ट्री पे धीरे धीरे हम वेपनरी बढ़ाते हैं और आसपास के एरिया को कब्जाते हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ किया था। देन सेकंड वन इज मिलिट्री पावर। विद नो डाउट द पोर्टुगीज हैव advanced and modern military comparison to the India. This is the most most strong reason why they have survived that much long in India. Okay. Now moving to the third type is maritime power, which is also is सेम स्ट्रॉन्ग एज देयर मिलिट्री पावर, जो कि उनकी मिलिट्री पावर से कोई कम नहीं थी। उनकी मैरीटाइम पावर में इक्विपाइड कैनल्स, फ्लीट, एवरीथिंग एक्सेप्शनल शिप्स होते थे। ओके, नाउ मूव ऑन टू फोर्थ थिंग, अंडर डेवलप्ड अरब वर्ल्ड। ओके, so at the time which Portuguese come to India, the Middle East was lacked resources and woods to construct the जब वो ओके जब पुर्तगाली भारत आए थे, तो जो इजिप्ट था और जो अपना मिडल ईस्ट था, वहां पे रिसोर्सेज की काफी कमी थी। वो इतना डेवलप नहीं था जितना कि आज के जमाने में है। ठीक है, तो इस वजह से वो पुर्तगालीज को रोकने में संभव नहीं थे, उनका रूट यूज करने के लिए, जो वो रूट यूज कर रहे थे उस टाइम पे। ओके, now move on to the fifth point, no fear of superpower। उन्हें किसी सुपर पावर का कोई फियर नहीं था इंडिया में, मोस्टली बिकॉज द जो मुगल एम्पायर्स थे, जो मुगल एम्पायर थे, उन्होंने उनके साथ मोनोपोलिस्टिक अप्रोच रखी थी, परमिशन एंड ग्रांट एंड ट्रेड वाली। एंड जो बाकी के यूरोपियन ग्रुप थे, जैसे कि डच, डेन्स, ब्रिटिशर्स, वो आपस में ही इतना लड़ झगड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो कोई भी उनमें से इतना कोई पावरफुल नहीं था जिनकी वजह से इन्हें डरने की जरूरत पड़े हो पुर्तगालीज को अदर ग्रुप से। ओके, हम ओवर टू द सिक्स्थ पॉइंट, skills and technology। with no doubt they were very good traders, navigators and governors। that was the reason for their strong uphold in India। Okay, and the last one is good relation with Mughals। as I told you, they have friendly approach with Mughals and also get permissions build church in their area। Okay, but इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी, इतनी स्ट्रॉन्ग अपहोल्ड होने के बाद भी, पोर्टुगीज फेल हुए इंडिया में। वो उतने कामयाब नहीं हुए जितने ब्रिटिश हो सके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो सके। तो अब हम उनके फेलियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। ओके, वेट अ मिनट, रीजंस ऑफ फेलियर, रीजंस फॉर फेलियर। ओके, sorry, so here we will start lack of leadership। first one was the lack of leadership। जो पुर्तगालीज थे, वो अल्फेंसो एल्बुक्वेरेर के बाद कोई भी ऐसा एक पावरफुल जनरल या वॉइसरॉय इंडिया भेज ही नहीं सके जो कि उसकी तरह कमांड कर पाता, या फिर जो फ्रेंडली किंगडम से उनसे, जो जो क्लोज किंगडम्स थे गोवा के आसपास के, उनसे
एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रख सकता। ओके, lack of leadership, failed to send strong individual like Alfonso Albuquerque after his death. Okay. Second one was corrupt government. जो पुर्तगाली अथॉरिटी थी इंडिया में वो ओपन थी ब्राइब के लिए, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी वो उस टाइम पे काफी कम थी, और जो नेचर था ऑफिशियल्स का वो काफी सेल्फ सेंटर नेचर था। अथॉरिटीज वर करप्ट open to bribe self-centered officers. Okay. Third, dishonest official, as I have discussed, but इसको भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। जो ऑफिशियल थे उन्होंने अपनी प्रायोरिटाइज की पर्सनल वेल्थ ओवर वेलफेयर ऑफ मासेस। ओके, पर्सनल वेल्थ ओवर वेलफेयर ऑफ मासेस। ठीक है। द सेकंड वन इज द फोर्थ वन इज रिलीजियस इंटरफेरेंस। जो पुर्तगाली थे उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन किया इंडियंस का टू क्रिश्चियनिटी टू क्रिश्चियनिटी में फोर्सफुल कन्वर्जन किया, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्ट्रक्शन भी किए गोवा में मंदिर के, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन गोवा, ऑन गोवा। सॉरी, fifth one was expansions of Mughal Empire. एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। पोर्टुगीज का जो मेनली एम्पायर फेल हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि 1556 में अकबर बिकम्स एम्परर एंड हिज conquest to win most of territories starts। 1556 में अकबर जो है वो एम्परर बनता है और उसका जो क्वेस्ट है वो चालू होता है ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष को, इंडिया को जीतने का, जिसकी वजह से पुर्तगाली मेनली फेल हुए। नाउ सिक्स्थ वन, डच एंड इंग्लिश एडवर्सरीज। जो डच और इंग्लिश थे वो मोस्टली, इंग्लिश जो ब्रिटिश थे वो सुपीरियर थे इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, वेपनरी और पॉलिसीज देन पोर्टुगालीज देन पोर्टुगीज। इसलिए पोर्तुगीज जो है वो एक इंफीरियरिटी की वजह से वहां पे फेल हुए। देन लास्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ ब्राजील।
डिस्कवरी ऑफ ब्राजील की वजह से जो पोर्टुगीज का जो कॉलोनियल एम्बिशंस था वो दोबारा वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ब्राजील एंड दे लीव इंडिया आफ्टर दैट. And now we are going to discuss about the arrival of Dutch in India. Okay. Arrival arrival of Dutch in India. Sorry. In 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई नीदरलैंड में. ओके. इस्टेब्लिश इन नीदरलैंड्स. दे डिफीट उन्होंने पुर्तगालियों को हराया एंड उसके बाद कंट्रोल लिया इंडिया के कुछ रीजन्स पे और जहां पे उन्होंने स्पाइसेस थी उनको ग्रो किया और उनका ट्रेड किया. took control of their region in India where spices grown and trade traded. जो उनके ट्रेडिंग पोर्ट थे वो मेनली गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थे. ठीक है. ओके. their trading ports of Dutch trading ports गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. Sorry. And then और मसूलीपट्टनम में उनकी फर्स्ट जो फैक्ट्री डच फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश हुई 1605 में एट इन 1605 1605 सॉरी 1605 फर्स्ट डच फैक्ट्री established in Masulipatam. Later on at Pulicat 1610 and in Surat 1616. Okay, let's move on to another point. जो बंगाल में उनकी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई वो हुई थी पीपली में. ओके. फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल was founded in Pipli. Pipli is a place in Bengal. Okay. There are some other factories like Kasim Bazar, Patna, Balasore, Nagapattinam and Cochin, but they are not relevant to be asked in the examination. So we will discuss only about in these factories. Okay. They are the just first ones and the most famous ones. Okay. And significant ones. Okay. तो जो डच थे वो मेनली ट्रेड करते थे राइस का,
ओपियम का, रॉ सिल्क का, इंडिगो का, एंड मसालों का, स्पाइसेस। ओके। मेजर जो पोर्ट थे उनके, मेजर सेंटर पोर्ट, सॉरी नॉट पोर्ट्स, मेजर सेंटर जो थे उनके वो पुलिकट था। देन लेटर ऑन इट रिप्लेस्ड बाय नांगापट्टिनम। पहले पुलिकट था उनका मेजर सेंटर, देन पुलिकट से वो नांगापट्टिनम शिफ्ट किया उन्होंने। देन बट आफ्टर सम टाइम त्रिभुवनकोर के जो महाराज थे, महाराज मारथुंडा वर्मा डिफीटेड पुर्तगाली, हाँ उन्होंने पुर्तगालियों, sorry not Portuguese, Dutches defeated Dutches in Battle of Polachel, Battle of Polachel in 1741. Okay, they also get defeated by Robert Clive. Dutch also got defeated by Robert Clive in Battle of Vedara in 1759. Okay. Now we will see the cause of collapse of Dutch decline economy. Okay. उनकी इकोनॉमी जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी लगातार आफ्टर द ब्रिटिश टेक ओवर, जो ब्रिटिश ने टेक ओवर किया था उस वजह से हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, उनका जो कुछ कुछ रीजन्स थे उनकी तरफ ही एक सेंट्रलाइजेशन हो गया का एक रवैया था, जिसकी वजह से वो और जो रीजन थे उन पे अपनी पकड़ और अपनी होल्ड नहीं कर पाए। डोमिनेंस ऑफ स्पाइस ट्रेड, they only dominated the spice trade, which caused them lose or lost in other trades, other their trades. Okay. Relative weakness of Dutch army or navy compared to British. Okay. Okay, now we are going to discuss about the arrival of Danish in India. Okay, just give me a minute. Arrival of Danish in India. डेनिस जो थे, डेनिस पीपल फ्रॉम डेनमार्क, डेनमार्क के जो थे वो उनके लोगों को डेनिस एक्चुअली कहा जाता है। जो इनकी डेनिश नॉर्वेगियन कंपनी थी, डेनिश नॉर्वेगियन चार्टेड कंपनी, उसने एंटर किया था इंडिया एंटर्ड इंडिया in 1616 AD, and for almost 225 years Denmark controlled colonial territories in India, यानी कि
जो डेनिस थे उनकी 225 ईयर तक इंडिया में कॉलोनीज रही थी, जो कि फाइनली उन्होंने क्विट करी थी 1845 में। ओके। डेनमार्क कंट्रोल्ड colonial sorry colonial territories in India for over 225 years, which they quit after, which they quit in 1845. Okay. Next, first settlement of Dennis Tranquebar, Telangana. Okay, in 1620, 1620. Then other settlements are Serampore, Bengal, and Nicobar and Nicobar Island. Okay. Their headquarter was in Serampore, headquarter Serampore, founded Serampore Mission Press. Serampore Mission Press की स्थापना करी थी in by Danish missionaries जो कन्वर्ट करते हैं in 1949. Oh, sorry, not in 1949. In 1749. In the end, in they have sold every outpost to British. Okay, to British in 1848. So now we will discuss the arrivals of French. अब हम फ्रेंच का अराइवल्स पढ़ेंगे इंडिया में। अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया क्विकली हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नाउ लास्ट अमंग यूरोपियंस टू एंटर इंडिया, यूरोपियंस टू एंटर इंडिया in 1664 and 1664 at Pondicherry. Okay. First French factory at सूरत। इन सूरत में 1667 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी बाय फ्रेंकोइस कैरॉन, एंड देन इन मसूलीपट्टनम। फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी की फाउंडेशन भी करी थी मार्टिन ने। फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी led by Martin in 1617. Martin, who was the first governor of France, French. Okay. Now, in 1674, 1674 में चंद्रनगर क्लोज टू कोलकाता
they have opened their factory after the permission of Bengal Nawab. After the permission of Bengal Nawab, बंगाल के नवाब, बंगाल नवाब जो कि थे उस टाइम पे सस्ता खान. ओके. बाई 1720 जो डच थे, सॉरी तो फ्रेंच थे, उन्होंने अपना कंट्रोल बनताम, सूरत, मसूलीपट्टनम तक खो दिया था अपना, क्योंकि उस टाइम पे जो थी वो वॉर ब्रोक आउट हो गई थी फ्रांस एंड नीदरलैंड के बीच, जो कि एक दूसरे के ही कॉलोनीज को हड़प रहे थे. जो उनके इंडियन काउंटर पार्ट्स थे वो इंडिया में एक दूसरे की कॉलोनी को हड़प रहे थे. लुजर्न, सूरत, मसूलीपट्टनम एक्सेट्रा. फ्रेंच पावर जो है वो अगेन रिवाइव होती है, रिवाइव्ड बाई गवर्नर टेन्योर एंड डूमास. जो उनके दो गवर्नर थे, लिनियर एंड डूमास, उनके द्वारा जो फ्रेंच पावर है वो दोबारा रिवाइव की जाती है बिटवीन बिटवीन 1720 एंड 1742, 1720 एंड 1742. who occupied माहे, मालाबार, which is in मालाबार, यनम, कोरोमंडल द्वीप पे, in both 1725 and तरिकाल in तेलंगाना. Arrival of their arrival of next French governor, sorry, arrival of next French governor Dupleix, FG French governor Dupleix 1942 में, beginning of beginning of Anglo French conflict, which later on give rise to Carnatic Wars, due to which they final defeat face करते हैं, due to which faces final defeat in India. Final defeat in India. Okay. So guys, at the last we are going to discuss about the arrival of Britisher in India. Let's see it. In 1600, EIC, East India Company, got chartered from Queen Elizabeth first to trade in East Indies for 15 years. 1600 में क्वीन एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया की जो कंट्री थी उनमें ट्रेड करने के लिए मोनोपोली मिल गई. तो ट्रेड इन इंडिया फॉर 15 years. Then in 1611 फर्स्ट फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स की होती है वाज इन फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम में डालते हैं. देन फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो होती है फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है वो जो डालते हैं वो होती है एट फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत. वो सूरत में डालते हैं.
स्टेबलाइज होती है इन 1615 जहांगीर. Now, here, look at. We are going to discuss the thing of British in chronological order to make you understand better. हम इस चीज को डेट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आए. ठीक है. 1615 में जहांगीर ने अप्रूव कर दिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री. अप्रूव किया था फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन मुगल एम्पायर में कहीं पे भी ब्रिटिश कर सकते हैं. ओके. जो कि पहले उसने डिक्लाइन कर दी थी 1608 में. एंड देन इन 1632 में कंपनी को एक गोल्डन फरमान मिलता है. कंपनी गॉट गोल्डन फरमान फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोल्डकोंडा. गोल्डन फरमान फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोल्डकोंडा. जिसके बाद स्टैब्लिश होती है फैक्ट्री एट बालासोर 1633. मद्रास 1639 एंड हुगली at 1642. Then 1639 company got permission from Chandragiri to build factory near Madras. Got permission from Chandragiri, king of Chandragiri to build factory near Madras. Okay. So here guys, in 1651 ईस्ट इंडिया कंपनी को है जो एक निशान. ईस्ट इंडिया कंपनी एक निशान ईस्ट इंडिया कंपनी को निशान मिलता है बंगाल के गवर्नर से जो कि सुल्तान सूजा थे उस टाइम पे. एंड एक ट्रेडिंग प्रिविलेज मिलता है इन रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ जिसका उन्हें एनुअली 3000 रुपए एनुअली गवर्नर ऑफ बंगाल को पे करने थे इस ट्रेडिंग प्रिविलेज के बदले. और 1962 में जो किंग चार्ल्स होते हैं रिसीव्ड इन 1962 किंग चार्ल्स रिसीव्ड बॉम्बे और डाउरी फ्रॉम पोर्टुगीज. 1667 औरंगजेब गिव फरमान टू ट्रेड इन बंगाल. औरंगजेब जो है जो 1667 में कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान देता है कि आप बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं. और 1686 में जो ब्रिटिश होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अगेंस्ट मुगल्स एंड गॉट डिफीटेड. और जो फैक्ट्रीज उसकी वॉर के बाद जो सीज होती है वो होती है सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम. दैट्स ऑल. एंड देन औरंगजेब पार्डन कर देता है उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को एंड ग्रांट करता है परमिशन टू ट्रेड. बट इन एक्सचेंज ही डिमांड 1.5 लाख एज कंपनसेशन. बट एंड लेटर ऑन इन 1696 1696 ओके दैट्स सम ऑफ माय मिस्टेक. 1690 यहाँ पे 97 होगा. ओके. कंपनी जो है वो दीवानी राइट लेती है वहां के बंगाल के 3 एरियाज के जो कि होते हैं सुल्तानुती, कलिकत्ता एंड गोविंदपुरा. वहां का जो बंगाल का जो सूबेदार होता है उससे ये राइट खरीदती है जिसका नाम है आजिम उस शाह. उससे ये राइट्स खरीदती है. ठीक है. लेटर वो जो आज के डे का जो कलकत्ता है वो वहां बिल्ड होता है एंड फोर्ट विलियम जो कि वहां का एक बहुत ही फेमस फोर्ट है वो भी बिल्ड करते हैं इन 1700 में. एंड देन फारूक शाह जो है वो एक इशू करता है एक फरमान टू कंपनी टू ट्रेड इन लार्ज नंबर ऑफ कंसेशंस. ठीक है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाई ब्रिटिश सक्सीड इन इंडिया अगेंस्ट अदर यूरोपियंस. ओके. So let's just do it. Why British
succeed against another others powers. Okay. First one was Carnatic Wars. जो कार्नेटिक वॉर्स हुई थी डिफरेंट ग्रुप्स के बिटवीन डच फ्रेंच पोर्तुगीज, उसमें जो इमर्ज हुए थे विक्टोरियस, ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस, इमर्जेस victorious. Okay. Then first reason, second domestic rivalry, जो कि किंग्स और गवर्नर्स की जो आपस की राइवलरीज थी इंडिया की, उन्होंने उसका एडवांटेज उठाया एंड देन एक्सपेंड किया अपने ट्रेड को और एम्पायर को, ऑब्वियस सी बात है. देन पावरफुल लीडरशिप, या नो डाउट, विद नो डाउट British have the most powerful leadership. That's why they rule us for 200 years. Individuals like Robert Clive, Warren Hastings was the main reason for the expand of the Europeans in India. Fourth one, financial support. They got financial support from the governor of the Bengals and all after getting some Diwani rights and all, okay, of the Bengal. Next one is lack of national pride and unity in India. That's so true. British play divide and rule here and divide us and rule our country. इंडिया में जो था जो नेशनल प्राइड और जो यूनिटी को लेके कोई ऐसा उस टाइम पे कुछ था नहीं भाई. हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस तरीके के विचार जिसपे बांटना काफी आसान था ब्रिटिशर्स के लिए. हमें नेक्स्ट, पावरफुल military. With no doubt, they have the most powerful military amongst the all European groups that have had been come to India. Okay. Second, seventh, and the last one, diplomatic policies. Used policies like doctrine of lapse, and subsidiary alliance to expand. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था, ये एक ऐसी पॉलिसी थी ब्रिटिश की कि अगर कोई राजा जिसका कोई बेटा नहीं है, अगर वो मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो उसका किंगडम है वो अपना लिया जाएगा. इसी पॉलिसी के तहत जो रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था 1857 का रिवोल्ट, उसमें यही पॉलिसी रानी वो झांसी पे अप्लाई की गई थी क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था और जो उनका जो बेटा था वो एडॉप्टेड था. एंड सब्सिडियरी अलायंस में ब्रिटिश जो थे आपको सब्सिडियरी आर्मी प्रोवाइड करते थे, सब कुछ प्रोवाइड करते थे, लेकिन आप उनके अंडर काम करते थे. दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो. बट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए अब क्या ही कर सकते हैं. दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग यू, बट आई विल प्रॉमिस आई विल बी देयर टू टीच यू along with all topics, and we will cover the later the decline of later Mughals in the next video. Thank you so much for watching it. I hope my hard work and this video will be useful for you. If अगर ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम में आती है तो मेरी मेहनत सफल होगी. That's all. Thank you very much.